السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن آن 365. کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسے ہیں زہیب؟ آج آپ کا فیوریٹ ڈے ہے. میں ٹھیک بالکل, آج فرائیڈے ہے, آج فرائیڈے ہے بالکل. ویسے یہ ہفتہ کافی جلدی گزرا تھا. اس سے پہلے والا بھی کچھ جلدی گزرا تھا. اس سے پہلے والا نہیں, آپ کہہ رہے تھے there's a long way to go. اچھا ہاں صحیح ہے, لیکن یہ کہ دن ویسے تیزی سے ہی گزر رہے ہیں, دن تیزی سے گزر رہے اور رمضان بھی آنے والے ہیں. تو جناب آج کے شو میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. آپ کو سیاست کی دنیا کا حال, کرکٹ اور اوورسیز سے ملاقات ہم تو روز کرواتے ہیں, آج بھی کروائیں گے آج شو میں. اس کے علاوہ ملک بھر میں جاری پولیو مہم پر بھی بات کریں گے. شہر میں پھرتے بے لگام ٹرکس اور ڈمپرز کی وجوہات سے ہونے والی معصوم اموات کی پر بھی بات کریں گے, اس کی بھی وجوہات جانیں گے. اور آخر میں ہم ایک انتہائی حساس موضوع پر روشنی ڈالیں گے اور اپنے کچھ خاص گیسٹ سے بات کریں گے. تو یہ ہے جی آج کا شو کا احوال. اور آج کی اچھی بات آج آپ کریں. اچھی بات میں کروں؟ ہاں سامنے ہی ہے, آپ کریں. A kind word can change someone's entire day. Be generous with them. بالکل. تو کہتے ہیں نا کہ ہر الفاظ جو, ہر لفظ آپ کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوتا, وہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. ہاں جی, ہنسی مذاق کریں, لیکن یہ کہ ٹھیک ہے کبھی کبھار ہو سکتا ہے کچھ الفاظ سے آپ کے کسی کا دل دکھ جائے, تو آپ ان کو ذرا سا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے استعمال کریں. سوچ سمجھ کے استعمال کریں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ٹاپ نیوز کی طرف چلتے ہیں. آج کی اچھی بات ہو گئی. اب ٹاپ سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی ہماری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ صدر مملکت کے کامیاب دورہ چین سے پاک چین دوستی کے نئے سفر کا آغاز ہو گیا ہے. اور اس دورے کے دوران قابل تجدید توانائی, کوئلے کی گیسیفیکیشن اور سیمنٹ سمیت عام معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں. مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی موجود تھے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے چین کے وزیر اعظم لی کیچانگ سے بھی ملاقات کی ہے اور دونوں رہنماؤں کی پاک چین اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر گفتگو کی گئی ہے. صدر مملکت نے پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے کے لیے چین کی مسلسل حمایت کو بھی سراہا. تو یہ کامیاب دورہ چین کا. بالکل. ہوپ اور امید یہی ہے کہ جو بھی یہ ساری ہم ہیلپ لے رہے ہیں اس کا صحیح استعمال ہو, اس کی امپلیمنٹیشن ہو, تاکہ ہمارا ملک اور ہماری اور ہیلپ کے ساتھ ساتھ کوآرڈینیشن, کوآپریشن, یعنی میوچول جو ایک ہوتا ہے نا انٹرسٹ کی بات جب ہوتی ہے, تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آپ جب کوئی چیز اسٹیبلش کرتے ہیں, کوئی معاہدہ کولیبوریشن جب ہوتی ہے, تو اس میں دونوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے. بالکل. اور اس طریقے سے معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو پہلی ہماری ٹاپ سٹوری ہے. دوسری ٹاپ سٹوری ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو مذہب کا جو استعمال ہے اس کو جو ہے وہ اتحاد کے لیے استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پولیٹیشینز مذہب کا استعمال کرتے ہیں, ریلیجس کارڈ بالکل استعمال کرتے ہیں, اور وہ صرف نعرے ہوتے ہیں لوگوں کو صرف خون گرمانے کے لیے, ان کا لہو گرمانے کے لیے, یا پھر ان کو ایک مذہبی ٹچ کی بھی ظاہر ہے, وہ آپ کو یاد ہے نا کہ مذہبی ٹچ ذرا سا دے دیں. تو بالکل صحیح انہوں نے بلاول بھٹو زرداری نے نشاندہی کی ہے کہ مذہب کا استعمال اتحاد کے لیے ہمیشہ استعمال ہونا چاہیے, نفاق کے لیے نہیں, تفریق کے لیے نہیں ہونا چاہیے. امریکہ کسی آفیشل کی حیثیت سے میں نہیں آیا, انہوں نے کہا اس دورے سے متعلق, اور انہوں نے کہا کہ سابق اور موجود ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ملاقاتوں میں خارجہ پالیسی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. امریکہ پاکستان تعلقات کا اپنا تناظر ہے. اچھا, دوسری طرف ایک تو یہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ جو بات کی ہے, دوسری طرف آپ کو معلوم ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کر رہی ہے جی, اور کل سوالات بھی ہوئے. تو آج جناب مولانا فضل الرحمان سے کل یعنی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی ملاقات ہو گئی ہے. کیا بات ہے, ملنے کوئنسیڈنس تو نہیں ہوگا. ملنے پہنچ گئے وہ, اور مولانا فضل الرحمان نے ملاقات سے قبل اپوزیشن گرینڈ الائنس کو اعتماد میں لیا ہے. یعنی مولانا جب اپوزیشن سے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اعتماد میں لیا ہے کہ بھائی وزیر اعظم میرے پاس آ رہے ہیں, اور ایسے ایسے ہی سارے معاملات ہیں. ملاقات میں گرینڈ الائنس کے بارے میں تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان نے پی کا ایکٹ کے بارے میں وزیر اعظم سے شکوہ بھی کیا ہے. ملاقات وزیر اعظم کی بار بار درخواست پر ہوئی ہے. وزیر اعظم نے بار بار درخواست کی ہے مولانا صاحب سے, اور مولانا بولے کہ آپ اپوزیشن گرینڈ الائنس کے اجلاس کو سبوٹیج کرنے آئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف مولانا کی باتوں پر ہنس بھی پڑے, یعنی ایک تھوڑا سا ہیومرس اینڈ ہوا, ماحول بھی ہوا. لیکن دیکھیں وہ مولانا نے ایک بات کر دی,
क्या आप ग्रैंड लाइंस का आपने देखा सुना अंडर इन बिटवीन लाइंस उन्होंने जो कहना था वो तो कह दिया बिल्कुल। लेकिन खैर मुलाकात करने आए आदत भी की, और पॉलिटिक्स में ये मुलाकातें और राबते होते रहने चाहिए, तो ये हमारी कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलें जी, क्रिकेट की तरफ जरा चलते हैं। गद्दाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए तैयार है। ओपनिंग सेरेमनी आज होगी। प्राइम मिनिस्टर शाम 7 बजे रिबन कटिंग करेंगे। 7:30 बजे ऑफिशियल किट अनवेल की जाएगी और जी शायकीन का दाखिला फ्री है। अली जफ़र, आयमा बेग और आरिफ लोहार की खूबसूरत आवाज़ का जादू लोग देखेंगे और सुन सकेंगे। लाइट शो भी मैनेज किया गया है, तो अमेजिंग फ़िज़ाई लाइट शो होगा। आईसीसी ने चैम्पियंस ट्रॉफी का टीज़र भी जारी कर दिया है। गद्दाफी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम की अगर बात करें तो नेशनल स्टेडियम भी क्रिकेट फीवर के लिए तैयार है। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन जो है वो सारी कंप्लीट हो गई है। डिजिटल स्कोर बोर्ड और लाइट्स एक्टिव हो गई हैं। सदर मुमलिकत 11 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। तो जनाब हमारे ये दोनों स्टेडियम टॉप नॉच बन गए हैं और आई वाज रियली एक्साइटेड। ज़ुहैब, मैं ज़रा अखबार भी देख रही थी आज सुबह, तो बड़ी खूबसूरत तस्वीरें वहाँ की आई हुई है। तेजी के साथ काम हुआ, फुटेज पे काम हुआ है भाई। आई थिंक दिन रात लगा के काम हुआ है। दिन रात लगा के काम हुआ है और बस अब देखे ट्रायंगुलर सीरीज आ गई है 8 तारीख से, यानी कल से जी, कल से या परसों से 8 तारीख जी, कल से। अब स्कूल नहीं जाते ना, अब डेट का नहीं पता। कल से ट्राई नेशन स्टार्ट है और वो हमारी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां होंगी। न्यूजीलैंड आ चुकी है, साउथ अफ्रीका पहुंच रही है। दोनों टफ टीम्स है और इन दोनों टीम्स के खिलाफ अगर हम ट्राई नेशन में अच्छा खेलते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलेगा इससे। तो एक क्रिकेट का कार्निवल शुरू होने वाला है, फेस्टिवल शुरू होने वाला है और फेस्टिवल से पहले का ये ट्राई नेशन सीरीज भी मिल गई। एक ट्रीट है भाई, बिल्कुल कि आप आईसीसी की तैयारी में डबल ट्रीट हो गई। और आपको पता है ना ज़ुहैब, जब भी ये क्रिकेट का फीवर शुरू होता है तो हमारी सड़कों पे सारी टीम्स जो आ रही होती है उनके बिलबोर्ड्स लगते हैं, बड़ा लाइट का एक इफेक्ट होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है पूरा शहर। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर स्क्रीन्स भी लगाई जाती है, बिल्कुल शहर के, हाँ जी, शहर के बहुत से इलाके ऐसे होते हैं जो खास तौर पर मुख्तस है। और आपको पता है सिर्फ ये क्लब्स और इस तरह के बड़े कैफेज ही नहीं, बल्कि जो छोटे छोटे ढाबे उन पे जो टीवी, छोटा सा टीवी है, उसमें चाय भी चल रही है और तबसरे भी। अच्छा, ये कितना होता है, कितना मजे का होता है भाई। नहीं, पीसीबी के तो अच्छा, हाँ, हम ये बात करेंगे, एग्रेसिव मार्केटिंग करनी चाहिए। हमें प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि भाई एग्रेसिव मार्केटिंग करनी चाहिए और सारी प्रमोशन। लेकिन मेरी बात बीच में रह गई, वो ये कि देखिए तबसरे और तजिए भी चल रहे होते हैं ना। कितनी मजे की बात है कि जिसने क्रिकेट खेली भी नहीं ना, वो उसके अपने ओपिनियंस है। अगर यार इस बॉल पे देखो, अगर ये आगे निकल के मार ले तो फिर छक्का हो सकता है। क्या होता है? लेकिन वो पहले भी कह रहे थे ना कि भाई जो बाहर बैठ के बात करना आसान होता है, जब इन फील्ड जो प्रेशर होता है ना, वो क्रिकेटर को ही पता होता है। अच्छा जी, तो ये तो क्रिकेट का खेल ऐसा है, लेकिन पॉलिटिक्स का खेल भी बड़ा मजे का है, बड़ा दिलचस्प खेल है जो हमेशा हर गुजरते दिन के साथ तब्दील भी होता रहता है जी। तो जनाब पॉलिटिक्स में हो ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल यौम सियाह का ऐलान कर रखा है और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत भी आवाम के ज़ेर बहस इस वक्त है कि कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई से एक धड़े ने जाकर मुलाकात जब की तो बड़ी शिकायतें की अली अमीन गंडापुर से मुतालिक, और उसके बाद ये तब्दीली आई है। फिर आर्मी चीफ को जो खत है इससे मुतालिक भी बड़ी बातचीत हो रही है, वो लिखा है या नहीं लिखा है, ओपन लेटर है कि मकसद क्या है उस लेटर को लिखने का, क्या चाह रहे हैं आर्मी चीफ से बानी पीटीआई। तो इन सारे मामलात पर हम बात करेंगे। जी, हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई साहब ने, रहनुमा पीटीआई हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं और वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। जी, गुड मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल के जलसे की जो स्वाबी में होने जा रहा है, क्या प्लान है उसका, और क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ इस जलसे से अपना मकसद तस्लीम कर सकेगी, मुतालबा तस्लीम कर पाएगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, मुतालबा तो तस्लीम होता है, नहीं होता है, लेकिन एक एहतजाज जो है वो आईनी हक है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो हक हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। बड़ा अफसोस की बात है कि हम
ہم نے لاہور میں مینار پاکستان میں بھی جلسہ کرنا تھا جس کی حکومت نے اجازت نہیں دی، تو اس کے بعد ہم ہر ضلع میں جو ہے وہ احتجاجی جلسے ہوں گے، جو مظاہرے ہوں گے ہر ضلع کے سطح کے اوپر. اور خیبر پختونخوا میں صوابی کے اندر بہت بڑا جلسہ ہوگا اور اس کی جو قیادت ہے وہ جنید اکبر اور علی امین گنڈاپور صاحب کریں گے. اب دیکھنا یہ کہ ایک طرف حکومت جو دعوے کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کل جو انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ انہوں نے کہا کہ جی سیکورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اس طرح اجازت نہیں دی جا سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا میں ثابت ہو گیا کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں جلسے بھی ہو سکتے ہیں، وہاں جلوس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن لاہور کے اندر جو بڑے بڑے دعوے ہو رہے تھے کہ امن و امان کی صورتحال بڑی بہتر ہے، حکومت نے خود ثابت کر دیا کہ وہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہے. اچھا یہ بتائیے، جو ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے کہ پولیس اور جتنے بھی حکومت کی سطح پر ادارے ہیں وہ کوئی کوآپریشن جلسے کو لے کر اس طرح نہیں کریں گے یا شرکت نہیں کریں گے جلسے میں، اور پھر اسٹوڈنٹ سے بھی یونیورسٹیز میں بھی یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. ایسا کوئی ہے؟ کیونکہ ڈینائی کیا ہے علی امین گنڈاپور نے اس بات کو. نہیں، جو چیف سیکرٹری ہے اس نے بالکل خط لکھا ہے، اور چونکہ چیف سیکرٹری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نامینی ہوتا ہے وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی مطلب چیف سیکرٹری ہو یا آئی جی ہو وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ چاہے وہ آئی جی ہو چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو وہ وفاق اپنی مرضی سے بھیجتا ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پہلے بھی کوئی سرکاری ملازمین ہمارے ساتھ نہیں تھے، وہ تو چیف منسٹر آتا تھا، اس کے ساتھ اپنی سیکورٹی ہوتی تھی. تو ایسا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہاں کی جو ہے نا پولیس بھی آ رہی ہے اور سرکاری ملازمین بھی آ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. چیف منسٹر جہاں بھی جاتا ہے اس کے ساتھ سیکورٹی ہوتی ہے اپنی، اور اسی طرح جو صوبائی وزیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک دو سیکورٹی والے ہوتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال سے یہ کہنا کہ جی جلسے میں کتنے 15 وزیر ہوتے ہیں، 15 وزیر میں اگر 30 بندے ہوں یا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. شوکت صاحب یہ بھی بتائیے کوئی اور پارٹی کی الائنس ہے؟ ہم نے دیکھا کل مولانا صاحب پرائم منسٹر سے بھی ملے، انہوں نے آپ سے بھی باتیں کی ہیں. از ہی آلسو پلینگ ٹو کارڈز؟ شاہد خاقان عباسی بھی ظاہر ملاقات ہوئی ہے، تو وہ بھی اس جلسے میں یا آپ کے احتجاج میں کل شرکت کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو پیورلی تحریک انصاف کا شو ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہے وہ تشکیل پا جائے، تو اس کے بعد پھر جو لائے عمل بنے گا وہ مشترکہ ہوگا. ابھی تو یہ تحریک انصاف یوم سیاہ منا رہی ہے جو 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جماعت اسلامی نے بھی اعلان کر دیا ہے، اور بھی اگر کوئی پارٹیاں منانا چاہتی ہیں اپنے طور پہ تو بالکل منائیں، کیونکہ 8 فروری کو تو بہت بڑا ڈھاکہ پڑا ہے اس ملک میں. جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کو چوری کیا گیا ہے، اور میرے خیال سے پورے پاکستان کو اس کے خلاف نکلنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ ناجائز حکومت ہے. وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے سارے ناجائز ہے. آپ دیکھو وہ کوئی چیز برداشت نہیں کر رہی ہے. پی کا قانون لا کے انہوں نے سب کے گلے دبانے کی کوشش کر دی ہے. اب اتنا خوف ہے اس حکومت میں کہ وہ اپنے خلاف تنقید برداشت نہیں کر پا رہی ہے. نئے قوانین نافذ کر رہی ہیں. انٹرنیٹ کے ساتھ کیا حشر. اچھا شوکت صاحب یہ بھی بتائیے، کیا 8 فروری کا جو جلسہ ہے وہ لانگ مارچ میں تبدیل ہونے کا امکان ہے؟ ہم سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی، لیکن میرے خیال سے یہ کہ آگے جو معاملات ہوں گے کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ گرینڈ الائنس بنے اور گرینڈ الائنس کے ذریعے ہی معاملات کو آگے بڑھایا جائے. تو اب یہ کہ پارٹی لیڈرشپ کیا اعلان کرتی ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا اس وقت. ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت کے جتنے بھی حکومت سے اب تک بات چیت ہوئی ہے اس سے تو ہم مطمئن نہیں ہیں. اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے. جو عمران خان کے خط کے حوالے سے آپ نے بتایا، تو عمران خان نے جو خط لکھا ہے
वो एक स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया उन्होंने, उसने कोई अपने जात के लिए कोई चीज नहीं मांगी है। नहीं, खत की तो हम इस बात मुल्क में करेंगे, अब तक पहले तो आपके इंटरनल पॉलिटिक्स भी देखें। ये जो खबर आपने उससे मुताल्लिक अभी कोई बात नहीं की कि क्या अली अमीन गंडापुर की तब्दीली का कोई इम्कान है, क्योंकि दूसरी तरफ जो क़यादत दी गई है, कहा तो ये जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर के पास जिम्मेदारी एक चीफ एग्जीक्यूटिव है उस सूबे के, इसलिए वो सदर की हैसियत से नहीं, लेकिन एक धड़ा है जो कि उनके बारे में शिकायत कर रहा है। और अभी भी कुछ नाम आए कि बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत अली अमीन गंडापुर के बारे में तल्ख बातें की हैं और इस वजह से तब्दीली हुई। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मीडिया की हद तक बातें हैं। अली अमीन गंडापुर हो या जुनैद अकबर हो, दोनों की नामजदगी इमरान खान ने की है, और जब इमरान खान का एतमाद दोनों को हासिल है तो दोनों रहेंगे, अगर नहीं रहा तो नहीं रहेंगे। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। और ये कहना कि जी अली अमीन गंडापुर से इमरान खान नाराज है, अगर वो नाराज होते तो वो हटा भी देते। वजीर दाखिला से मुलाकात पे उन्होंने बहुत वो किया है कि वो कैसे मिल सकते हैं अली अमीन वजीर दाखिला से, यानी मोहसिन नकवी से नाम ये सुनाई बातें हैं, सुनाई बातें हैं। अली अमीन गंडापुर देखे कोई जाती तौर पे तो नहीं मिले होंगे ना, अगर वो मिले भी हैं तो ऐसे आपको पता है कि कुरम का मसला था, दहशत गर्दी के मसाइल होते हैं सूबे के अंदर, वो वजीर दाखिला अगर वो आते हैं मिलते हैं तो वो तो एक अलग बात है ना, वो कोई पर्सनल हैसियत में तो नहीं मिले। लेकिन जो अगर जाती तौर पे मुलाकातें होती हैं तो वो तो किसी सूरत इमरान खान छोड़े कोई आम वर्कर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हो रही है वो इस तरह की मुलाकातें जाती तौर पर आपके नोटिस में है कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी देखें, अब तक 2 मुलाकातें हुई है, दोनों जो है वो मीटिंग के हवाले से हुई है। अगर अली अमीन गंडापुर जो है वो वफाक में कोई मीटिंग होती है और उसमें सूबे की इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो आते हैं, वहाँ पे मुलाकातें होती है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हो जाती है और लोगों से भी हो जाती है। लेकिन ये कहना कि जी अली अमीन गंडापुर की कोई स्पेशल मुलाकातें होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, कोई वो नहीं है। अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर हैं, रहेंगे जब तक इमरान खान का एतमाद हासिल है। ये सुनाई बात है। बिल्कुल ठीक है। सर ये भी बताइए, जो लेटर दिया गया बानी पीटीआई ने जो लिखा है, उस पे भी बहुत सारी बातें हो रही है। उनकी तरफ से आ रहा है कि जी हमें तो कोई लेटर ही नहीं मिला, और वो कुछ उसमें 6 नुकात उन्होंने बयान किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई मुझे बेल आउट करें, मैंने इन अदर वर्ड्स लोग इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि बानी पीटीआई कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब जरा पीछे हटने का हमें मौका दे दें और हमें कोई निकालें इस सूरत हाल से। नहीं, मेरे ख्याल से उस खत पे अगर आप पढ़ेंगे ना तो कहीं भी उन्होंने रिलीफ नहीं मांगा है इमरान खान ने अपने लिए या पार्टी के लिए। उन्होंने ये कहा है कि मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब है, आप जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं उनके पास अवामी सपोर्ट नहीं है, और उन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया है। अब मेहरबानी करें उनसे हाथ हटा लें, न्यूट्रल हो जाएं, ताकि मुल्क के हालात ठीक हो जाए। क्योंकि अवामी मैंडेट जो है वो तो पीटीआई को मिला है, और इन लोगों के पास टोटल 17 सीटें थी नून लीग के पास, उसकी वजह से आपने उनको उस पर इक़्तिदार पे बिठा दिया, तो इससे हालात खराब हो रहे हैं। तब मजीद इनकी सपोर्ट जो है वो आप छोड़ दें। तो मेरे ख्याल से इमरान खान ने मुल्क के हालात की तरफ इशारा किया है। तो न्यूट्रल कैसे हो जाए? न्यूट्रल तो इमरान खान कहते हैं हो ही नहीं सकता इंसान, वो तो खुद कहते हैं कि न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल तो इंसान हो ही नहीं सकता, उसको तो एक साइड लेनी है। देखें, आम आदमी न्यूट्रल नहीं हो सकता, लेकिन इदारे तो न्यूट्रल होते हैं ना। सही है। अब सुप्रीम कोर्ट हो या आर्मी हो या कोई और इदारे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करें कि जी आप पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करें? यानी इदारे की हैसियत से लिखा है खत, ये यानी एक इदारे को एड्रेस किया है ये बानी पीटीआई ने, तो जाहिर है इदारों को ही किया ना, और किसको किया? उन्होंने ये सबसे पहले क्या, इमरान खान ने सबसे पहले क्या कहा है? नहीं, क्योंकि आप तो ये कहते थे ना कि कुछ लोग हैं ऐसे, इदारे के बारे में हम नहीं कह रहे, आप कुछ लोगों के बारे में। ये आप भी समझते हैं, सारी दुनिया समझती है इदारों को चलाने को कौन चलाता है, किसके पास इख्तियार होता है। देखें, ये कोई गलत बात नहीं है, न किसी के कोई वो है। देखें, इस वक्त चूंकि मुल्क मुश्किल में है और हम सबका वो है, और ये कहना कि और इमरान खान ने जो बात की सबसे पहले, उन्होंने कहा ये फौज मेरी फौज है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये फौज जो है दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है, और उन्होंने उसकी तारीफ भी की, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कुर्बानियां जो है उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन जंग तब जीती जाती है जब फौज के पीछे कौम खड़ी होगी, अवाम खड़ी होगी।
تو یہ انہوں نے بتایا ہے اور میرے خیال سے کوئی غلط بات نہیں کی ہے, اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. اوپن لیٹر ہے, اگر کسی کو نہیں ملا ہے تو سارے ٹی وی چینلز کے اوپر 6 نکات آ گئے ہیں, اس میں کوئی بھی نکتہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ خط کیوں لکھا. عمران خان پاکستانی ہے, اس پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں. اگر وہ یہ نہیں کہیں گے تو کل ساری دنیا کہے گی کہ جی آپ نے کیوں نہیں بتایا ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ واحد ملک ہے جس میں صبح اٹھے اسٹاک ایکسچینج آسمان پہ ہوتا ہے اور مہنگائی جو ہوتی ہے وہ بھی آسمان پہ ہوتی ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے, تو ساتھ ساتھ دیکھیں تو قرضے بھی بڑھ گئے ہیں اور قرضے بھی لے رہے ہیں. تو یہ میں حیران ہوں کہ کیسی معیشت ہے کہ جو ٹھیک ہو رہی ہے اور بغیر ایکسپورٹ کے ٹھیک ہو رہی ہے. آپ کی ایکسپورٹ تو کم ہو رہی ہے, آپ ایک طرف فگر دیتے ہیں ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے, آپ ایک طرف فگر دیتے ہیں کہ ریونیو میں کمی آ گئی ہے. جی شوکت صاحب یہ بھی بتائیے, مولانا فضل الرحمان دونوں طرف بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور دونوں طرف رہتے ہیں, بڑا پارشل رہتے ہیں. ان کی اس پارشلنس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں, پارشل وہ اس لیے نہیں رہ سکتے کہ ان کا جو مطالبہ ہے کہ نئے انتخابات کرائے جائیں تو وہ تو ہمارا بھی مطالبہ ہے, تو پارشل تو وہ نہیں ہے. اب یہ کہ گرینڈ الائنس میں وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یہ ان کی مرضی. گرینڈ الائنس کی لیڈرشپ مولانا صاحب کے پاس ہوگی, جیسے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ آپ کے دور میں جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ مولانا صاحب پی ڈی ایم کی, وہ جو یاد ہوگا آپ کو, تو اس کی لیڈرشپ ان کے پاس ہوتی تھی. یہ تو دیکھیں, یہ تو اب بات چیت سے بعد ہی پتہ چلے گا نا. اس وقت اگر مولانا صاحب بن جائے یا کوئی اور بن جائے, اس سے کوئی فرق نہیں. بڑے خوشگوار موڈ میں ویسے ملاقات ہوئی ہے کل مولانا صاحب اور وزیر اعظم کی, اور وہ پہنچے بھی ہیں, اور مولانا صاحب نے ان سے کہہ بھی دیا کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ میں گرینڈ الائنس سے ہماری کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, اس لیے. یہ تو دیکھیں, یہ حکومت تو صابن کی ٹکیا پہ کھڑی ہے نا. ان کے تو دم پہ پیر رکھو نا تو یہ پھر سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پھر یہ پھول کے دستے بھی لے جاتے ہیں, رکھتے ہیں مولانا کے آگے, یہ پھول ہم آپ کے لیے لائے ہیں. اور جب تھوڑا سا مضبوط ہونے کی طرف جاتے ہیں تو پھر مولانا کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں لوگ. دیکھیں, ان کو پتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے خلاف تو یہ کریک ڈاؤن کر لیتے ہیں, لیکن اگر گرینڈ الائنس بن گیا تو پھر ان لیڈروں کے خلاف یہ کریک ڈاؤن نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے ان کو, یعنی وہ اسٹرینتھ آپ کو بھی چاہیے. آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹرینتھ آپ کو چاہیے کہ آپ کے خلاف. ہمارے خلاف تو سارے مل کر کر سکتے ہیں نا, لیکن مولانا اور دوسری پارٹیوں کے خلاف تو اس طرح کریک ڈاؤن نہیں ہو سکتا ہے جس طرح ہمارے خلاف. ہمیں تو پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے ہیں, لیکن ہم ہمارے جو ہے نا استقامت. تو پھر یہ بتائیں کہ کیا مولانا صاحب کو دیکھ آپ نے کوئی بات چیت آگے کا کوئی لا عمل ہو رہا ہے؟ حکومت اگر آپ کی آتی ہے تو مولانا صاحب کیا کسی بڑے عہدے پر ہمیں نظر آئیں گے؟ کیونکہ کچھ تو مولانا صاحب کو دینا پڑے گا. یہ گولڈن سوال ہے زہیب. نہیں, یہ آنے والی ہے باتیں, آ جائیں گی. مولانا صاحب کے ساتھ جتنا ہاتھ ان لوگوں نے کیا ہے نا, اس کے ذریعے پی ڈی ایم بنائی اور ان کے ذریعے ہماری حکومت ہٹوائی, تو آپ کمپنسیٹ کریں گے پھر مولانا صاحب ان سے. پھر ایسے کہا کہ جس طرح مکھن سے وہ بال نہیں ہٹاتے, اس طرح کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. اور شاہد خاقان آپ کے وزیر اعظم ہو, کیا ہی بات ہے. شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہو آپ کے, اور مولانا صاحب وزیر اعظم سے اوپر کی عہدہ ہو, کیا زبردست آئیڈیل گورنمنٹ بنے گی ہے. یہ تو بات کی باتیں ہیں, سارے مل کے. دیکھیں, ملک کے لیے اگر کچھ کرنا ہے نا بالکل تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ چیزیں, یہ بندر مارٹ, یہ پہلے تو اس جو ناجائز حکومت ہے اس سے جان چھڑانی ہوگی نا, پھر اس کے بعد کوئی آگے بات. صحیح. بالکل جی. شوکت یوسف زئی صاحب, رہنما پی ٹی آئی, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے دیا. بھائی دیکھیں, یہ وہ ٹائم ہے جب کھل کے بھی بات ہو اور دبے لفظوں میں بھی. پاسبلٹیز تو یہ ہے جو ہم بات کر رہے ہیں نا, اب یہ لگ ایسا رہا ہے کہ کیا یہ تو بہت ہی بھی آگے کی بات, فار فیچڈ بات ہے, لیکن یہ ابھی کی بات ہے. جناب, ایک چھوٹی سے وقفے کا وقت ہوا ہے, کہیں مت جائیے گا, ہم لوگ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب پولیو کے کچھ بڑھتے ہوئے کیسز پہ بات ہو جائے. جی, سال 2025 کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم جاری ہے. ملک بھر میں
मुहिम 3 फरवरी से 9 फरवरी तक ये जारी रहेगी। इस दौरान 45 मिलियन से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का प्लान है और 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स इस मुहिम में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और हम हमेशा सलाम पेश करते हैं पोलियो वर्कर्स को, जिस तरीके से वो घर घर जाकर और अपनी जान पर खेल कर भी ये रिस्क लेते हैं ताकि मुस्तकबिल को बचाया जा सके। पोलियो से बचाव के हिफाजती खतरे पीने से महरूम रह जाने वाले बच्चों तक रसाई का आज़म लिए पोलियो का कौमी प्रोग्राम अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है। बिल्कुल जी, इसी पे मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर दुर्रेश अवार, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, आपको वेलकम करते हैं हम शो में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सरवत, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहबा ये बताइए पोलियो मुहिम का रिस्पॉन्स जो है वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में किस तरह देख रही हैं आप, और वापस से केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, बिल्कुल इरेडिकेशन की तरफ चला गया था बट दोबारा पोलियो आ गया है, उस पर कुछ बात बताएं। जी बिल्कुल, देखिए सर, जैसे आप लोग को पता है 45 मिलियन बच्चों का जो हदफ है इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान के अंदर कवर किया जा रहा है, जिसमें सिंध के अजला, पंजाब, बलूचिस्तान और एडीके के एरियाज को जो है वो कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे 4 लाख से ज़्यादा पोलियो वर्कर जो है वो उसमें हेल्प आउट कर रहे हैं हमारे यहाँ। लेकिन अलमिया यही है कि हमारे यहाँ केसेस जो हैं वो लास्ट ईयर जो है आपको पता है जब हमने पोलियो मुहिम स्टार्ट की थी तो सिर्फ एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव था और एंड ऑफ 2024 में हमारे पास अनफॉर्चुनेटली 73 केसेस रिपोर्ट हुए। जब बात करते हैं हम पोलियो की तो एक केस अगर आइडेंटिफाइड होता है तो इसका मतलब है 100 अनआइडेंटिफाइड केस कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं। और जहाँ इन्वायरमेंटल सैंपल की बात करें तो हमारे 31% अगर हम देखें तो शरह जो है इन्वायरमेंटल सैंपल की पॉजिटिव है। और अगर इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव होता है तो ये होता है कि हर बच्चा जिसकी इम्यूनिटी कम है या जिसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हुई है वो भी रिस्क पर है उतना ही जितना कोई और बच्चा होगा रिस्क पर। और ये जो आप पॉजिटिव सैंपल कह रही हैं माहौलियात का, ये क्या, इसको जरा डिफाइन करें, क्या ये नहीं समझ सकते? एक्चुअली होता है किसी भी मुल्क को पोलियो फ्री करने के लिए 2 चीजें क्राइटेरिया होती हैं, एक तो केसेस का पोलियो फ्री होना, यानी आपका कोई भी केस पोलियो फ्री ना हो 3 साल तक, और जो हमारा इन्वायरमेंटल सैंपल यानी जो हमारा सेवरेज का सिस्टम है वहां से हम वाइल्ड पोलियो वायरस को डिटेक्ट करते हैं, वो नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। आप लोग को पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहां पर ये पोलियो का वायरस जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। और पिछले 2 साल से हमें लगता था कि नकल मकानी की वजह से ये सिर्फ सर्कुलेट हो रहा था, हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल सैंपल में पॉजिटिव था लेकिन हमारे पास केसेस नहीं थे। होता क्या है, कुछ ऐसे आपको पता है इलाका जाते हैं जहाँ पर हमारी पोलियो कैंपेन हर दफा लास्ट टाइम भी आपको पता है रोक दी गई थी, इस दफा भी रोकी गई है। और अफगानिस्तान में जो है वो वैक्सीनेशन इतनी प्रॉपर होती नहीं है, तो वो नकल मकानी में जो अडल्ट हैं या जो बच्चे हैं वो कैरियर लेके आते हैं। कि होता क्या है कि अगर किसी बच्चे के पास पोलियो वायरस है जहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो रही है और मैं वहाँ से पोलियो वायरस कैरी करके ला सकती हूँ, अडल्ट क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और वो अपने फुजला में खराज करते हैं, वो फुजला जो है वो हमारा एनवायरमेंटल सैंपल यानी हमारे सेवरेज लाइन को कंटेमिनेट करता है, तो वायरस हमारे पास एनवायरमेंट में आ जाता है। और फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे आपको पता है पानी का और सेवरेज का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं कंटामिनेशन होती है सेवरेज की टू द वाटर सिस्टम, और फिर वो वाइल्ड वायरस जो है वो वाया कंटामिनेटेड वाटर बच्चे। डॉक्टर साहबा ये तो बहुत मतलब आपकी सारी मेहनत, इतने हजारों लोग, लाखों लोगों की मेहनत करके अगर वो मेन प्रॉब्लम ही नहीं फिक्स की जा रही तो वो कैसे बेहतर होगी सिचुएशन? इसकी कोई चीज सर्वत इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि हमें अपने रवैये को चेंज करना है। देखिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, डॉक्टर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे उलमाए दीन हैं। आप देखें जब कैंपेन आती है हर जगह टिकर्स हैं, बिल बोर्ड है, सब लगते हैं, अवेयरनेस तो हर लेवल पर मौजूद है, लेकिन लोग इस चीज को इतना सीरियस नहीं है। और इसमें फिर लोकल बॉडी सिस्टम भी आ गया ना, लोकल बॉडी का निजाम और ये सब क्लीन रखना तो लोकल बॉडी का काम। जी बिल्कुल, देखिए 2 तरह से हमें काम करना है पैरेलल। एक तो हमें वैक्सीनेशन को कवर करना है, लोगों की रूटीन इम्यूनाइजेशन को भी करना है, क्योंकि जितने भी केसेस आए ना लास्ट टाइम उनमें से 51% बच्चे वो थे जिनको रूटीन इम्यूनाइजेशन भी नहीं मिली, यानी उन्होंने पोलियो के साथ साथ जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है फास्ट टीका जात वो उन्होंने लिए नहीं, तो डेफिनेटली उनको सारी इम्यूनिटी जीरो थी। तो हमें अब अपने 2 तरह से काम करना है, एक तो लोकल बॉडी के लेवल पर हमारा अपना सेवरेज सिस्टम, वाटर सिस्टम अच्छा होना चाहिए। हमारे यहाँ लोग जो हमारी यूनियन काउंसिल के लेवल पर जब अगर पोलियो वर्कर्स जा रहे हैं, सपोर्ट होती है पुलिस की हमारे साथ, लेकिन ये बावर करना जरूरी है कि अगर ड्रॉप्स नहीं मिले हैं तो कोई ना कोई पनिशमेंट होनी चाहिए। जैसे लास्ट टाइम आपको याद होगा कोविड आया था, जैसे सिम ब्लॉक करने का सिस्टम आया सबने जाके कोविड वैक्सीन लगवा ली।
तो इस रवैये को चेंज करने के लिए हमें कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी कि लोग इस चीज को सीरियस लें और हर दफा हुकूमत की वैक्सीन तरफ कराएं। से हिकमत अमली होनी। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर एक तो वैसे कि वॉलंटियर लोगों को अपनी यानी उनके फायदे की बात हो रही है पेरेंट्स को, तो जाहिर है उन्हें तो खुद ही बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर कानून की अमलदारी भी होनी चाहिए, आप ये कह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर कोई भी बच्चा माजूर हो जाता है अंडर 5 इयर्स, वो तो डिसीजन मेकर पर्सन ही नहीं है ना। आप 5 साल के बच्चे को तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो है, उसका असल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी केयर टेकर्स की, फैमिली मेंबर्स की आती है। तो उनको ये बावर कराना जरूरी है कि वैक्सीनेशन कंपलसरी और लाजिम है। अगर वो नहीं कराएंगे तो कोई ना कोई एक्शन होगा। बिल्कुल। डॉक्टर दुर्र शहवार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही उम्मीद रखते पोलियो इरेडिकेट हो पाकिस्तान से। आई मीन वेयर इन 2025 और अभी तक हम पोलियो की बात करें, ये बहुत ही और देखे ना वो कंटेमिनेटेड वाटर की जो हमने बात की ना, सीवेज का सिस्टम जो हमने उसकी बात की है, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो आपने सवाल किया कि इतनी मेहनत कि 4 लाख से ज्यादा वर्कर्स पिला रहे हैं, ठीक है खत्म हो गया, लेकिन वो जो पानी के अंदर जो उसके नमूने हैं फिर वो फैल जाएगा, और यही हो रहा है पाकिस्तान में। तो इस पर नजर रखें। अब बच्चों की बात हो रही है, उनके फ्यूचर की बात हो रही है, उनकी नशोनुमा की बात हो रही है, उनकी सेहत की बात हो रही है। तो बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए उनकी जहनी सेहत पे भी बहुत बात होनी चाहिए, और इसीलिए पक्के दोस्त जो है वो जी जनाब बिलाल मकसूद ने पक्के दोस्त एक बहुत ही अनबिलीवेबल कंटेंट क्रिएट किया है बच्चों के लिए, जिसमें उनकी जहनी नशोनुमा, उनके हेरिटेज, उनके कल्चर, जो हम अपनी एज ए सोसाइटी बच्चों को तरबियत देना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को कवर किया है, जो आप 365 पे देख सकेंगे सैटरडे और संडे दोपहर 12 बजे। तो बच्चों को और बड़ों को, उनके वालिदैन को भी हम यही हिदायत देंगे कि ये शो जरूर देखें और अपने बच्चों को दिखाएं। बिल्कुल, बच्चों की एंटरटेनमेंट भी इसमें होगी, एंटरटेनमेंट के साथ साथ बच्चों की तालीमो तरबियत भी होगी। तो उसको कहते हैं एजुटेनमेंट, एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट। उसी एक तरीका है यानी लोगों बच्चों को पढ़ाने का, ताकि बोर भी ना हो ना बच्चे। अक्सर ऐसा होता है कि आप किताबों में बच्चे बोरिंग हो जाती है वो चीज। तो आपने एंटरटेनमेंट के जरिए बच्चों को सिखाना है। तो क्या है भाई, दोबारा बताते हैं हम। कल और परसों दोपहर 12 बजे आप और आपके बच्चे ये प्रोग्राम देख सकेंगे, पक्के दोस्त, तो देखना मत भूलिएगा जी। तो ये रही पक्के दोस्त की एक छोटा सा हमने ब्रेक लेना है जी, और ब्रेक के बाद हम आएंगे तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी की बात होगी, हम बात करेंगे। एक ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की जर्नी की। जी जनाब, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से दूर है लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। तो जी हमें आज ज्वाइन किया है इसी तरह की पाकिस्तानी ने, सफिया इसरार, मार्केटिंग मैनेजर हैं यूएई से। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सफिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सफिया बोलिए। सफिया, हमसे बात कीजिए। हमारी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सफिया ये बताइए, सफिया आज मूड आपका कुछ सही नहीं लग रहा। नहीं, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक है। सफिया ये बताएं किस किस्म की मार्केटिंग करती हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी यूएई में है, बहुत अच्छी कम्युनिटी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बेसिकली आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, और लैपटॉप, मोबाइल्स, ओई मोबाइल के साथ काफ़ी अर्से से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो उसी हवाले से मार्केटिंग करते हैं, उसी हवाले से कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग के जो हमारा स्किल है वो ऊपर जाए। और किस किस्म का कंटेंट क्रिएट करती हैं सफिया? लाइक कि लैपटॉप के हवाले से कि लैपटॉप हमें कौन से लेने चाहिए, किस किस्म के किसके लिए होते हैं, किसके लिए नहीं होते। और जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और इसके अलावा क्या करती हैं, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती हैं? ये तो आपका काम हो गया ना। अदर देन दैट क्या होती एक्टिविटीज है, ये बताइए। अदर देन यही एक्टिविटीज है। पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं, पहले आपके सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा चाहते हैं कि बिल्कुल हमारा जो होमलैंड है पाकिस्तान, वो बहुत ज्यादा
फले फूले उसके लिए, मतलब सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव चाहते हैं कि हो पाकिस्तान और के करते लिए। क्या है अल्लाह करे। उस सोच को रियलिटी में बदलने के लिए? किस तरह आप देती हैं बैक टू द सोसाइटी? बैक टू सोसाइटी यही देते हैं कि भाई हम यही चाहते हैं कि जो अब हम दुबई में हैं, तो दुबई से हमारा अगर कनेक्शन है पाकिस्तान के हवाले से, तो हम यहाँ से पाकिस्तान के लिए जो भी कुछ कर सकें, जिस भी हवाले से कोई भी, मतलब जहाँ तक जो पॉसिबिलिटीज हो वो कोशिश करते हैं कि हो जाए। सही। और मैच की बात भी करनी है? बिल्कुल जी, मैच पाकिस्तान होने इंडिया का वाला हो रहा है वहाँ है। पे। पाकिस्तान इंडिया का टिकट्स खरीद लिया आपने? जी बिल्कुल, कोशिश है। अच्छा, कोशिश है। ये कोशिश नहीं, नाकाम मतलब हो जाएगी कोशिश क्या है? क्योंकि कोशिश सफिया क्या है? मैच होगा, टीम आएंगी, वो कोशिश करेंगी, आप क्या कोशिश करेंगी इसमें? सफिया क्योंकि पहले 1 घंटे में सारी टिकट सोल्ड आउट थी, आपको पता है ना ये बात? अब अगर हाँ, आपको बिल्कुल, मिलेगी तो बिल्कुल पता। आपको किसी और तरीके से मिलेगी। अच्छा, बस अब वो हम तरीका ढूंढ लें। अच्छा, ये बताइए पाकिस्तान को कौन कौन से मौक़ों में आप मिस करती हैं? कौन सी ईद हो गई, रमज़ान आने वाला है, किस तरह की, और फिर यूएई में उसको कॉम्पनसेट कैसे किया जाता है कम्युनिटी से? बिल्कुल मिस तो बिल्कुल करते हैं, क्योंकि फैमिली जो है वो थोड़ी दूर होती है हमसे, लेकिन जो कि हमारे आसपास काफ़ी पाकिस्तानी हमारे दोस्त होते हैं, तो हम उनके साथ ही बिल्कुल उसको सेलिब्रेट करने की अच्छे से कोशिश करते हैं, और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद आती है। लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो वन टच पे है, कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त हो गई है। वैसे कभी तो आपके साथ उससे ऐसा इतना हुआ कि ज़्यादा- आप उसकी रोड पे चलती हुई जा रही हैं और यूएई में चल रही हैं आप, लेकिन एकदम से मंजर बदल गया हो, आपको एकदम से लग रहा हो कि लाहौर में आ गई हैं आप, या आप कराची में आ गई हैं, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं था। हाँ, कराची की याद तो हरदम आती है, लेकिन खैर अभी थोड़ा हम लोग सही रहते हैं, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता कि हम एकदम से खो सही जाए रहते हैं? कि नहीं, आप हाँ, हमें कह रही है कराची कि को बस भूल ज्यादा हमें कन्विंस ना करें पाकिस्तान के बारे में, हम बिल्कुल सही है। गए। बिल्कुल, हाँ, अब इतना ज्यादा याद नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं अच्छा। आता। लेकिन हम भूल नहीं सकते। अच्छा, कब से हैं बिल्कुल सफिया भूल नहीं सकते। यूएई में? कब से हैं आप, और आपके घर वाले भी यूएई में हैं या पाकिस्तान में रहते हैं? नहीं, पाकिस्तान में ही रहते हैं ज्यादातर तो, लेकिन यूएई में भी है, मतलब अलग अलग, कोई शारजा में है, कोई अजमान में है, इस तरीके से है, लेकिन हैं काफी यहाँ पर भी हैं और पाकिस्तान में भी। चले, अच्छा, आप 2020 जब कंटेंट क्रिएट करती हैं तो आप वेलकम करती होंगी, पहले तो सलाम करती होंगी लोगों को, और उसके बाद खुदाफिज भी करती होंगी। तो ये कि हमारा ब्रेक का वक्त हो गया है, अब आप ब्रेक ले लें हमारे शो का 365 न्यूज़ पर, राइज एंड शाइन में ब्रेक ले लें आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक का टाइम अगर हो गया तो बिल्कुल ब्रेक लेते हैं राइज एंड शाइन की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू सफिया, वी विश यू ऑल द बेस्ट। और हमारी यही उम्मीद रहती है कि इसी तरह खवातीन बेहतर से बेहतर काम करती रहे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है वाकई, और होस्टिंग की ट्रेनिंग भी और हमारी ट्रेनिंग भी हमारी जारी है। जनाब कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। हमारे साथ है। वेलकम बैक नाजरीन। अब क्रिकेट पे कुछ बात हो जाए। क्रिकेट की बात हो जाए, क्रिकेट की बात अब होती रहेगी, क्योंकि सैफ अली की सीरीज, ट्रायंगुलर सीरीज शुरू होने वाली है कल से। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड की ट्राई नेशन सीरीज की तैयारियां जारी हैं, और ये सीरीज सिंगल लीग की बुनियाद पर 4 से 14 फरवरी तक खेली जाएगी, जिसके इब्तदाई 2 मैचेस लाहौर के कजाफी स्टेडियम में होंगे, जबकि आखिरी लीग मैच और फाइनल कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इस पर भी बात करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी पर भी बात करेंगे। कौन है हमारे जी, माजिद भट्टी साहब हमारे साथ आज मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उनसे उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। जी वालेकुम सलाम सरवत जोहेब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सुबह मौका दिया। जी sir, सर, thank you. सर ये बताइए टीम स्क्वाड की तैयारियां कैसी जा रही हैं और जीत के क्या इम्कानात हैं? ये बड़ा भारी भरकम सवाल कर दिया है हमने आपसे। देखें, अगर आपकी इजाजत हो तो मैंने कुछ जोहेब 11 खिलाड़ी बनाए हैं, अरे और मेरे जबरदस्त। ख्याल में यही पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी हो सकते हैं जो सैटरडे को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे। देखें, बाबर आजम और फखर जमान, ये पाकिस्तान का नया ओपनिंग पेयर है, और कंफर्म है कि बाबर जो है उनको अब ये मिशन सौंपा गया है कि जिस तरह मिड 90s में और उसके बाद सचिन तेंदुलकर भारत के लिए
एज ए ओपनर रोल प्ले करते रहे। तो बाबर को टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि आप ज्यादा ओवर भी खेलें, ज्यादा गेंदे भी खेलें और ज्यादा टाइम भी पिच पे गुजारें, लेकिन पाकिस्तान को मैच जितवाएं। सही। तो बाबर और फखर जमान ये पाकिस्तान के ओपनर होंगे। कामरान गुलाम वन डाउन पर आएंगे, उसके बाद मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा। तो पाकिस्तान के तकरीबन 7 बैट्समैन हैं। उसके बाद जो रेगुलर स्पिनर होंगे, जिसपे बहुत ज्यादा डिबेट भी चल रही है, अबरार अहमद, क्योंकि खुशदिल शाह और सलमान अली आगा का हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होगा। फिर 3 फास्ट बॉलर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ। और वो 4 खिलाड़ी जुनेद और सरवत जो मुमकिना तौर पर नहीं खेलेंगे, वो फहीम अशरफ, मोहम्मद हसनैन, उस्मान खान और सऊद शकील। और फहीम अशरफ के बारे में आपको पता है बहुत ज्यादा डिबेट हुई, लेकिन पहले मैच में कहा यह जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ फहीम अशरफ 11 का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा, यानी फहीम अशरफ हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में तो कहा जा रहा है कि होंगे। अच्छा, खुशदिल शाह और आप ये कह रहे हैं कि तैयब ताहिर, ये हमारे मिडिल ऑर्डर, ये खुशदिल शाह को आप कैसे भट्ट साहब जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि अभी इंटरनेशनल एरिना से इतना इन भी नहीं रहा वो, और काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर यह है। सलमान ने तो चले कहीं ना कहीं प्रूव किया है कि डाउन द ऑर्डर आकर अच्छा खेलता है। इस पर थोड़ी सी बात करें। जोहेब में मुझे ना तकरीबन कोई 3 से ज्यादा दहाइयां हो गई है इस दशकी सयाही में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में हम इसी तरह देखते हैं कि अचानक एक प्लेयर फ्रॉम नोवेयर टीम में आ जाता है। खुशदिल शाह भी यही है। देखें, अगर पास्ट परफॉर्मेंसेस देखें या रिसेंट पास्ट परफॉर्मेंसेस देखें, तो खुशदिल शाह ने ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी वजह से हम कह दें कि खुशदिल शाह को क्यों लेके जा रहे हैं। लेकिन टीम मैनेजमेंट खुशदिल शाह के पीछे भी खड़ी हुई है, फहीम अशरफ के पीछे भी खड़ी हुई है। मेरे ख्याल में रविश को अब तर्क करना होगा कि अगर आप लेकर आए तो आप जस्टिफाई करने के लिए मीडिया को तो बताएं कि ये वो रीजन है जिसकी वजह से हमने खुशदिल शाह को लिया है, और ये रीजन है जिसकी वजह से हमने इरफान खान नियाजी को ड्रॉप किया है। लेकिन आज तक जब मैं आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये वो मौका है जो न समझने का न समझाने का, हमें भी ये काम। अच्छा, ये आपकी ऑर्डर में आपने जो वन डाउन रखा है, कामरान गुलाम को रखा है, तो भारी जिम्मेदारी कामरान गुलाम के कांधों पर भी है, क्योंकि वन डाउन उन्होंने खेला होगा फर्स्ट क्लास में, लेकिन ये कि इंटरनेशनल में तो नीचे ही आए हैं। वन डाउन की पोजीशन तो बाबर आजम के लिए फिक्स, लेकिन क्योंकि जाहिर है हमारे ओपनर साइम अनफिट हो गए, इसलिए आपने उसको। अच्छा, मैंने जोहेब जो आपको 11 बताए हैं ना, ये मैंने तो आपको बताए हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट की सोच भी तकरीबन ये पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दाएं बाएं से जो बातें आ रही हैं, ये मैंने आपको वो 11 बताए हैं। लेकिन कामरान गुलाम, अगर आपको याद हो कि इंग्लैंड के खिलाफ जब बाबर आजम टेस्ट मैच में ड्रॉप हुए थे, तो कामरान गुलाम ने उस वक्त नंबर 3 पर जाकर बैटिंग की है। देखिए, वनडे तो ऐसी चीज है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको बाज दफा टीम की जरूरत के मुताबिक, बाज दफा प्लेयर को टीम में डालने के लिए पोजीशन चेंज करना पड़ती है। तो कामरान गुलाम को अगर ये नंबर दिया गया है, हो सकता है कोई और आ जाए, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक तो कामरान गुलाम ही नंबर 3 पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो रेगुलर नंबर 3 है वो बाबर आजम है। अच्छा, अब हम बाबर आजम से ओपन करवा रहे हैं। बाबर आजम की जो 100 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल है, 2015 में हमें 2 मैचेस ऐसे नजर आते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड इन यूएई, जिसमें बाबर आजम नंबर 3 पर खेले। कुछ मैचेस में 7-8 मैचेस हैं जिसमें नंबर 4 पर खेले, लेकिन पूरी बाबर आजम की क्रिकेट जो है वो वन डाउन पर ही हमें नजर आ रही है। लेकिन अब ये साइम अयूब की वजह से हमने एक गैम्बल खेला है। उम्मीद है कि बाबर आजम को जो किंग बाबर कहते हैं, वाकई वो अपने मकाम और मर्तबे के मुताबिक साहब, लेकिन वो ये कि कामरान पे प्रेशर आ जाएगा ना आपको, आप कामरान गुलाम पे वो प्रेशर इस तरीके से आएगा कि बाबर स्लो करेंगे, स्ट्राइक रेट उनका इतना ज्यादा होगा नहीं। दूसरी तरफ फखर टेक्निकली साउंड इतने ज्यादा है नहीं, विकेट उनकी जा सकती है। अगर 5-6 मैचेस खेलेंगे, उनमें 1-2 में ही परफॉर्म करेंगे वो, तो फिर स्ट्राइक रेट और वो, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई है, मॉडर्न डे क्रिकेट, 300 से अबव होगा टारगेट, तो फिर कुछ हो पाएगा। देखिए, बिल्कुल बाबर के साथ स्ट्राइक रेट का मसला रहा है,
لیکن میرے خیال میں T20 کرکٹ میں ان کے لیے مسائل زیادہ رہے. ون ڈے کرکٹ میں تو ان کے پاس چانس ہے کہ اگر وہ شروع میں سلو کھیلتے ہیں تو آگے جا کے تیز کھیلیں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جو پاور پلے کے اوورز ہیں اس میں اگر بابر آپ کو اسکور نہیں کر کے دیتے تو پھر فخر سے کروانا پڑے گا. لیکن ابھی تک جو ٹیم مینجمنٹ سوچ رہی ہے میں نے اسی کے تحت آپ کو 11 کھلاڑی بتایا. صحیح. بٹی صاحب یہ بھی بتائیے وہ تعمیراتی کام کیا چل رہا ہے اور سننے میں آیا ہے کمپلیشن کی طرف بالکل پہنچ گیا ہے. گدافی اسٹیڈیم اور نیشنل اسٹیڈیم کی ذرا اپڈیٹ دیجیے. دیکھیں سروت میرے خیال میں ہم کرٹیسائز تو بہت کرتے ہیں لیکن محسن نقوی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ تقریباً 120 دنوں میں آج گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہے. شام 7:30 بجے پرائم منسٹر شہباز شریف قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے. پھر تقریباً 3-4 دن بعد پریزیڈنٹ زرداری جو ہے وہ نیشنل اسٹیڈیم کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کریں گے. تو کل جو نیشنل اسٹیڈیم میں بھی بریفنگ دی گئی ہے میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ نیشنل اسٹیڈیم کا بھی 100% کام مکمل ہو گیا. اب فائنل ٹچز ظاہر ہے فنیشنگ کا کام چھوٹا موٹا باقی لیکن میرے خیال میں یہ جو 2 بڑے پروجیکٹس تھے میں بھی کہتا تھا کہ شاید یہ مکمل نہیں ہو سکیں گے لیکن اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ آج شام 7:30 بجے ایک بڑا فنکشن پاکستان کرکٹ بورڈ نے رکھا ہے. لیکن جو ایک اور اچھی چیز آج دوپہر کو محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں کہ وہ ورکرز جنہوں نے ہزاروں ورکرز جو سخت سردی میں قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن میں انہوں نے دن رات ایک کیا ہے ان کے اعزاز میں انہوں نے لنچ رکھا ہے جو میرے خیال میں ایک بہت اچھی بات ہے. اور پھر کل جو پاکستان نیوزی لینڈ کا میچ ہے وہ سارے مزدور وہاں بھی مدعو ہیں میچ دیکھنے کے لیے. تو یہ ایک یونیک چیز ہے. بالکل ایسا گیو بیک ضرور کرنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے محنت سے یہ بنایا ہے. جی اور بھٹی صاحب اب ٹیم کی پرفارمنس کی بات تھوڑی سی اگر ہم مزید کریں تو جو ٹرائنگولر سیریز ہونے جا رہی ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے میچ سے ہی ہم نے وہی ٹیم کھلانی ہے جو اس آئی سی سی ایونٹ میں کھلانی ہے یا پھر ہمارے پاس موقع ہے کہ مختلف کمبینیشنز ہم آزما لیں؟ دیکھیں زہیب اب سے چند گھنٹے پہلے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بھی لاہور پہنچ گئی ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم 3 دن پہلے آ گئی تھی. ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آ جائی ہے لیکن ساؤتھ افریقہ میں اس وقت FA-T20 جو ان کی لیگ ہے وہ چل رہی ہے اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں 9 ان کے مین پلیئر نہیں آئے. تو یہ ایک کنسرن کی بات ہے کہ بھائی جب اتنے بڑے ٹورنامنٹ کی تیاری کے لیے آپ آ رہے ہیں تو آپ کو اپنے مین پلیئر پاکستان بھیجنے چاہیے تھے. لیکن ساؤتھ افریقہ کا مسئلہ یہ ہے لیکن جب پاکستان کے خلاف وہ کراچی میں کھیلیں گے 12 تاریخ کو تو میرا خیال ان کے 2-3 جو مین پلیئر ہیں ان میں مہاراج بھی ہیں ایک اور بھی کوئی پلیئر ہیں وہ جوائن کر لیں گے. لیکن جو آپ کا سوال ہے بالکل میرے خیال میں اب پاکستان کے پاس جو تجربات ہیں کل نیوزی لینڈ کے خلاف کر لیں 12 تاریخ کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف کر لیں پھر اگر پاکستان فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو 14 کو کراچی میں فائنل ہے. میرے خیال میں 19 کو جو میچ ہے پاکستان نیوزی لینڈ کا اس میں پاکستان وہی ٹیم اتارے گا جو ان 3 میچز میں کھلائے گا. لیکن ایک صبح کا ٹائم ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن ایک جو ہسٹری کہتی ہے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان نیوزی لینڈ کے 3 میچز ہوئے ہیں وہ تینوں پاکستان ہار گیا ہے. تو آئی ہوپ کہ پاکستان ہسٹری کو چینج کرے اور اس بار نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پاکستان میچ جیت کر ایک چیمپئنز ٹرافی کا تگڑا اسٹارٹ لے. بالکل. بٹی صاحب یہ بھی بتائیے ڈیو فیکٹر بہت ہے موسم کی وجہ سے تو ول دیٹ کم ان آر فیور یا اٹ ول بی اگینسٹ اس؟ پورے ٹورنامنٹ پر اثر انداز ہوگا یہ. دیکھیں سروت اگر آپ 7-8 بجے اپنی گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے لیے گاڑی اسٹارٹ کریں نا تو آپ ونڈو اسکرین دیکھیں گے میں کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ اوس گرنا شروع ہو جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ڈیو فیکٹر تو ہے. پنجاب سے بھی اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ لاہور میں بھی ڈیو فیکٹر ہے. تو میرا خیال جب ڈیو فیکٹر ہوتا ہے تو پھر ٹاس امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جو ٹیم ٹاس جیتی ہے اور خاص طور پر سیکنڈ اننگز میں بیٹنگ آسان ہو جاتی ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ ڈیو فیکٹر ٹیموں کو متاثر کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن کرکٹ میں پچز ڈیو فیکٹر پلیئرز کا انجرڈ ہونا یہ ایک دیکھیں معمول کی چیز ہے. ابھی سے اگر پاکستان ٹیم اس چیز کو اپنے اعصاب پہ سوار کر لے گی تو شاید آگے اچھا نہیں کر سکتی. لیکن مجھے امید ہے کہ یہ ٹیم جس نے ریسنٹلی آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہم تینوں میچ جیت گئے تو 2 ہم بڑی ون ڈے سیریز جیت کر آ رہے ہیں. زمبابوے کے خلاف بھی
हमने वनडे बड़ी साहब ये भी बताइएगा इस ड्यू फैक्टर की वजह से क्या टीम सिलेक्शन में कोई कॉम्बिनेशन में, जैसे कहा जा रहा है कि सुफियान को भी रखना चाहिए था, एक और स्पिनर होता हमारे साथ, सलमान वैसे ही कोई ऐसे स्पिनर नहीं है, पार्ट टाइमर ही है, और अगर ये ओस भी पड़ती है, बॉल ग्रिप करने में मुश्किल होती है, हमारे फास्ट बॉलर्स भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो कोई कॉम्बिनेशन मजीद आप समझते हैं बेहतर किया जा सकता था एक और स्पिनर को ऐड ऑन करके? देखिए, ये तो बात आप सही फरमा रहे हैं कि अगर जो सिलेक्शन कमेटी है उनकी थोड़ी सी प्लानिंग बेहतर होती, तैयारी अच्छी होती, तो इससे बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती थी। लेकिन जाहिर है आकिब जावेद साहब कहते हैं कि जी आप एक स्पिनर ही टीम में खिलाते हैं, तो चले, अब हमें चूंकि टूर्नामेंट सर पे आ गया है, क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा इस टीम सिलेक्शन पे हो गई है, तो आकिब जावेद की नीयत में हमें शक नहीं है। अब तो हम परफॉर्मेंस देख के जाहिर है हम क्रिटिसिज्म भी करेंगे। अब जी जो परफॉर्मेंस रहेगी, दवा का वक्त गुजर गया, दवा का वक्त गुजर गया, अब तो दुआओं का वक्त है, दुआओं का वक्त है, और जैसी परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से हम क्रिटिसिज्म भी करेंगे। आखिरी सवाल भट्टी साहब, वेरी क्विक एंड वेरी शॉर्ट, जस्ट टू राउंड अप दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन, तीनों मुल्कों में से सबसे ज्यादा मजबूत टीम आपके लिहाज से कौन सी है? देखिए, एज ए पाकिस्तानी तो मेरा दिल तो पाकिस्तान के साथ कहता है, लेकिन ऑन पेपर मेरे ख्याल न्यूजीलैंड ज्यादा मजबूत। इंडिया पाकिस्तान कौन जीत रहा है सर? आप रैपिड फायर कर रहे हैं हम आपके साथ। देखिए, एज ए पाकिस्तानी तो मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टेबल को टर्न करे, लेकिन कल रात भी जो हमने नागपुर में इंग्लैंड और इंडिया का मैच देखा, तो ऑन पेपर तो इंडिया मजबूत है और इंडिया फेवरेट की हैसियत से 23 को दुबई स्टेडियम में उतरेगा। जबरदस्त। माजिद भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हम इसी तरह तंग करते रहेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स तंजकार। तो जनाब ये है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस कल भी हुई है ना इंग्लैंड के खिलाफ, क्या बैटिंग उनकी जबरदस्त चल रही है, और बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान के लिए, काफी टफ होने वाला ही है टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान का दिफा तो हमेशा नाकाबिल तस्खीर है, और हमेशा हमने इस दिफाई मैदान में जो हमारी सलाहियतें हैं दुनिया उसकी मुतरिफ है। कसीरुल कौमी मश्क अमन और अमन डायलॉग 2025 की मीडिया ब्रीफिंग कराची में हुई है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट एडमिरल अब्दुल मुनीब ने मीडिया ब्रीफिंग दी है, और इस मश्क का मकसद जो है वो बहरी ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है ताकि बहरी खतरात का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला किया जा सके। और पहली अमन मिशन में 28 ममालिक ने शिरकत की है। इस साल अमन मिशन का नवा एडिशन 7 से 11 फरवरी के दौरान मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें 60 से ज्यादा ममालिक अपने बहरी और फजाई जहाजों, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की टीम्स और मददूबीन के साथ शिरकत कर रहे हैं। तो हमारा बहरी, बर्री और फजाई अफवाज हमेशा हमारे सर का ताज है और काबिल फ़ख्र है हमारे लिए। अगर पाकिस्तान बहरिया की बात की जाए तो उनकी भी अचीवमेंट्स किसी से पोशीदा नहीं है, हिस्टोरिकली प्रूवन है। पाकिस्तान एयरफोर्स की बात की जाए तो वो सारी हिस्ट्री वो भी हमारी मौजूद है, और पाकिस्तान की जो वो अफवाज है ग्राउंड पे फोर्सेस है, बिल्कुल बर्री अफवाज, बिल्कुल उनको भी उनकी भी सलाहियतें काबिल दीद है और हमेशा हमारे साथ ये फख्र का बात। बिल्कुल जी, हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। वेलकम बैक नाजरीन। आए दिन डंपर्स की वजह से बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं, उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं कराची में। बढ़ते ट्रैफिक हादसात अवाम के लिए एक सीरियस इशू बनते जा रहे हैं। डंपर टैंकर्स की वजह से शहरियों की अमवात के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है, और इससे मुताल्लिक नशावर अशिया का इस्तेमाल भी ये देखा गया कि ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह बन रहा है। तो इसी मामले पर हमने पहले भी बात की थी और अब दोबारा हम बात करें, क्योंकि कल या एक दिन पहले एक वाकया हुआ है गुलिस्तान जौहर में। जी, जी बिल्कुल ऐसा ही है, कीमती जाने चली गई। इसी पे बात करने के लिए हम वेलकम करते हैं अली राशिद, तर्जुमान सिंध हुकूमत, और हाजी लियाकत महसूद, सदर डंपर एसोसिएशन। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो में। हाजी साहब, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि शहर में ट्रक और डंपर्स की
वजूहात कि हादसात से आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है और हम देख रहे हैं नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं रोज़। कई मासूम शहरी इनकी वजह से जाँ बहक होते हैं। इस सिलसिले में रोकथाम क्यों नहीं की जा रही और क्यों मुश्किलात पेश आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके बारे में आपको भी पता है और मुझे भी तो देखे कल नहीं परसों जो एक वाकया हो गया वो शरा फैसल वाले रोड पे डिब रोड आने के साथ, तो उसका दुख मुझे भी है। लेकिन असल की बात ये है रोड का तो एक हादसा है और वो तो अपने जगह पे अभी खसूस शहरी के लिए तो आवाम के लिए देखो आपको भी पता है हम तो आवाम से दूर नहीं है, हम तो आवाम के साथ है। खसूस इंशाल्लाह तो एक तंजानिया के साथ तो हमारा एसोसिएशन भी होगा, तो इसके बारे में लाजमी तो एक रास्ता निकालना पड़ेगा। तो आवाम के लिए जो खसूस शहरी आवाम है तो उसके लिए लाजमी तो एक अच्छा फैसला भी करना पड़ेगा। तो आज मेरा उम्मीद है और डीजी ट्रैफिक के साथ अभी मुलाकात भी कर दूंगा, उसके साथ में मीट कर दूंगा। अच्छा। वो कल हाजी साहब ये भी बताइए कि ये जो ड्राइवर्स होते हैं इनको सही मतलब इन पे कोई चेक एंड बैलेंस है, इनका लाइसेंस सही है, फिटनेस सही है, इनको नींद सही मिलती है क्या, ये कोई इस तरह की वाइसेस या ड्रग्स नहीं लेते, उस पे कौन चेक एंड बैलेंस करता है? और नहीं असल की बात ये है आपको भी पता है तो पाकिस्तान के अंदर तो चेकिंग बैलेंस भी है नहीं। और तो लाइसेंस के बारे में तो आपको भी पता है तो सिंध गवर्नमेंट से 2021 से मैं भी लगाता हूँ, तो लाइसेंस के बारे में तो मुझे लाइसेंस का ब्रांच है वहाँ तो इनका गाड़ी भी नहीं मिलता। तो अभी 2 महीने हो गया तो मैंने इसके बारे में तो एडिशनल आईजी कराची और आईजी लाइसेंस ब्रांच इकबाल दार, आईजी ट्रैफिक आईजी के साथ मेरा फोन पे बात हुई है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो सबके कहने पे और 2 महीने हो गया तो लाइसेंस का जो कार्रवाई तो हमने शुरू किया और आज जगह हर जिले पे इनका गाड़ी भी आएगा। और लेकिन अभी जो परसों वाकया हो गया तो उसका अफसोस गम दर्द तो मेरा भी है, लेकिन मेरा दिल ये नहीं मानता है तो किसी का भाई किसी का बाप बिल्कुल ऐसे ही गम और दुख तो सबको ही है, लेकिन इस तरह के वाकयात ना हो इसके लिए क्या किया जा रहा है आपकी एसोसिएशन मिलकर? अली राशिद आप बताइएगा, आप सिंध हुकूमत भी कंसर्न यकीनन होगी, लोगों की जानें जा रही हैं, कोई हिकमत अमली आप तब्दील कर रहे हैं कि वाकयात ऐसे ना हो, क्या सोच रही है सिंध हुकूमत इस बारे में? देखें आपको जैसे पता होगा सिंध हुकूमत ने इसका नोटिस भी लिया जी और एक्साइज मिनिस्ट्री ने भी एक नई चीज निकाली है कि जितनी भी गाड़ियां हैं जो डंपर्स हो गए बाकी दीगर हो गई हैवी व्हीकल जितनी भी हैं उनका एक फिटनेस टेस्ट होगा, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने मादी में देखा जो एक डंपर जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके ब्रेक फेल हो गए, तो अगर ब्रेक सही होते तो शायद इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था। सिमिलरली ड्राइवर्स हैं उनका भी एक फिजिकल और मेंटल टेस्ट होगा कि उनकी ज़हनी कैफियत क्या है, वो ड्रग एडिक्ट्स तो नहीं हैं, वो किस चीज में इन्वॉल्व हैं, बाकी को आर दे ट्रेन्ड टू ड्राइव हेवी व्हीकल्स, वो सब चीजों को देखते हुए तो सिंध हुकूमत ने तो क्रैकडाउन भी स्टार्ट कर दिया, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ गाड़ियां जब्त भी हुई हैं। जैसे माजी में भी मैंने आपका शो कर भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कि ये कराची शहर जो है इट्स बिगर देन मोस्ट कंट्रीज, नॉट सिटीज, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आबादी के हिसाब से। तो वसाइल कम है, मसाइल ज्यादा हैं। हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी हो कर सके कि जो टाइमिंग्स अली ये भी कहेगा ट्रैफिक पुलिस का जो किरदार है वो कितना अहम इसमें होगा, क्योंकि देखिए लेन की जो वायलेशन है वो भी ये कर रहे होते हैं और ऐसा कोई सिलसिला है कि लेन इन गाड़ियों के लिए अलग है और फिर ओवर स्पीडिंग का भी मसला है, तो इन चीजों पर तो ट्रैफिक पुलिस को अगर आप जरा मुताहरे ज्यादा करें तो। देखिए मैं आपको एज शहरी, कराची का शहरी या पाकिस्तान के शहरी ये बात आपको बताना चाहूँगा, आई थिंक सबको ओनरशिप लेने की जरूरत है। सिंध हुकूमत सिंध हो या कोई भी अब या विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ मैं नहीं जा रहा, एक अवेयरनेस के लिए एक बात बता रहा हूँ कि हम भी देखते हैं कि हम खुद भी करते हैं कभी कभी कि सिग्नल बंद है तो ट्रैफिक लॉस को अवॉइड नहीं करते, सिग्नल तोड़ देते हैं। एक आध एक्सीडेंट जो भी हुए हैं उनमें से अगर मोटरसाइकिलिस्ट जो थे जो अफेक्टेड थे अगर वो हेलमेट पहनी हुई होती तो शायद सूरत हाल डिफरेंट होती। तो सिमिलरली मैं यहाँ आवाम से भी अपील करूंगा कि अबाइड बाय द ट्रैफिक लॉज, हेलमेट पहने और अगर एक मोटरसाइकिल पे इट्स मेड पीपल उस पर आप 4-4, 5-5 लोगों को बिठा के नहीं लेके जाएं। सिंध हुकूमत ने तो अपने फर्ज जो है वो फराइज अंजाम दे रहे हैं। हमने ये फिटनेस टेस्ट जो गाड़ियों का हो गया, फिजिकल और मेंटल टेस्ट ड्राइवर्स का हो गया, उसके अलावा
जितने भी ये विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज को हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने उनके घर जाके विजिट भी किया, और ये लॉजिस्टिक्स और ये इनसे हमने अपील भी की कि आप कुछ कॉम्पनसेशन या जो जहाँ ये लोग हुए हैं उनको ये दें, और सख्त कार्रवाई करें ऐसे ड्राइवर्स के खिलाफ, और उन डंपर्स को कॉन्फिस्केट करके बंद करें जब तक वो दे आर नॉट एबल टू गो बैक ऑन द स्ट्रीट्स। तो हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आवाम भी साथ दे, लॉज को बाइट करे, और जो एसोसिएशन वाले मेरे जो भाई हैं डंपर्स एसोसिएशन, उनसे भी यही कहूँगा कि अपने ड्राइवर्स की स्क्रूटनी करें। हम हुकूमत सिंध देयर सो मच दैट वी कैन डू, मगर वो मिल के हम सब साथ चलेंगे और करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हाजी साहब ये बताइएगा कि कोई पर्टिकुलर टाइम है इन डंपर्स का जिस वक्त इनको निकलना चाहिए, या तो वो स्कूल टाइमिंग से दूर हो या दफ्तर के बंद होने या खुलने के टाइमिंग से दूर हो, तो ऐसा टाइम कोई उनके लिए प्लान किया है जहाँ पे डंपर्स को निकलना चाहिए और वो अपने वक्त के मुताबिक नहीं निकल रहे, रश आवर में निकल रहे, तो भी ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं? ये बात तो बिल्कुल सही है। तो हमारा पहले का जो था ये मलेर कैंट वाले रोड नहीं है जो सीधा जा रहा है मलेर कैंट वाले रोड, तो शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, बकाया कोई जो मेन शरा फैसल है वहाँ तो हमारे दिन में गाड़ी वहाँ तो बंद है, सुबह शाम तो ये तो सारे वही टाइमिंग्स है रश वाले। थोड़ा मौका मुझे भी दे देना बात करने के लिए, मुझे भी थोड़ा मौका तो दे देना, हम जो बात भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ तो बकाया जो डंपर के ऊपर मुकम्मल पाबंदी जब लगेगा तो आपको भी पता है शहर के अंदर जितने सब सरकारी काम है और मालबा भी है, कचरा भी है, रोड का सप्लाई भी है और बड़े बड़े बिल्डिंग भी है, तो सारे अदारे सरकारी का काम भी है, आर्मी का काम भी है ना, तो अगर मुकम्मल पाबंदी भी लगेगा डंपर के ऊपर, लेकिन आपका क्या ख्याल है तो फिर ये निजाम कैसे भी चलेगा? नहीं, ये सही, आप सही कह रहे हैं कि ज़ाहिर पाबंदी मुकम्मल नहीं ना। अली राशिद आप ये बताएं कि 2, 3, 4 चीज़ें ऐसी अभी आपके जहन में, यानी क्या सिंध हुकूमत सोच रही है कि यही हम पहले कर लें पहली फुर्सत में ताकि इन वाकयात को रोका जा सके किसी सूरत, वो क्या चीज़ें हैं आपके जहन में सिंध हुकूमत की जो इनको इम्प्लीमेंट करना है? देखिए सबसे पहले तो ये है कि फिटनेस टेस्ट गाड़ियों के जो भी चल रही हैं कि ये जाएं और अपना एग्जामिन करवाएं अपनी गाड़ियां की चलने के काबिल भी, अगर ब्रेक फेल गाड़ियों के हो रहे हैं इनकी, ऐसी बात है सवालिया निशान है कि ये चीज़ अवॉइड हो सकती है। देखिए एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, वो किसी के साथ कहीं भी हो सकता है, वो अल्लाह की तरफ है, वो दैट इज समथिंग यू कांट अवॉइड, सबके साथ होता है। मगर क्या हम आवी इंश्योरिंग के वो चीज़ें प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट से बिल्कुल नीचे लेके आ जाएं, तो उसमें हमने इनकी गाड़ियाँ चलने के काबिल हैं, गाड़ियों फिटनेस टेस्ट के रोड पे चल सकती हैं, सेकंड ड्राइवर्स के टेस्ट के वाकई वो केपेबल हैं, ये है। पुलिस की नफरी हमने बढ़ा दी है और थोड़ा और मजीद स्ट्रिक्ट कर दिया इन चीज़ों को। लॉ जो है इस टाइम तक निकलना है। ये लोग फिर आई थिंक सिंध हाई कोर्ट भी चले गए थे कि ये टाइमिंग इनको सूट नहीं करती, इसलिए कि इनको अपना पता नहीं कोई काम वाम करने, कंस्ट्रक्शन के काम करने होते हैं डंपर वगैरह को, वो एक अलग चैलेंज है जो हुकूमत डील से। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम फेस कर रहे हैं, बट वी आर मेकिंग श्योर कि सब चीज़ें। उसके अलावा इन डंपर्स के अलावा हम शहरियों पे भी जो आप देखते होंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पहने हुए, उसको भी हमने थोड़ा इसको स्ट्रिक्ट, जो पहले होता था लॉ मौजूद है मगर उतनी फर्मली इन्फोर्स नहीं होता था, तो वो उसकी इन्फोर्समेंट की तरफ भी जा रहे हैं कि कोई हेलमेट के बगैर दिखाई नहीं दे, कोई सीट बेल्ट अगर नहीं लगाई हुई ड्राइवर ने या जो उनके साथ जो बैठे हुए हैं तो उस पर भी कार्रवाई और फाइन हो। तो हम अपनी कोशिशें पूरी कर रहे हैं, मगर चाहते हैं कि शहरी भी हमारा साथ दें, ये डंपर्स ऑर्गेनाइजेशन की एसोसिएशन है वो भी ताउन करें, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा हाजी साहब ये बताइएगा कि जैसे अली ने कहा कि गवर्नमेंट शहरी हर किसी को अपना हिस्सा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस चीज़ को बेहतर करना है, जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी एजुकेशन, उनकी तालीम, उनकी सेहत, इसके ऊपर कौन चेक एंड बैलेंस रखता है लॉ अवेयरनेस पे उनकी? अच्छा, और सिंध गवर्नमेंट को मैं एक अपील करता हूँ, जो हम ट्रांसपोर्टर है, जो हमारा गाड़ी बाहर से भी आएगा, जापान से भी आएगा, हम 3 महीने पहले तो वहाँ टिकट भी जमा कर सकता हूँ, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को मैं एक अपील भी करता हूँ, जो रोड में जगह और जगह पे खड्डे हैं, तो वहाँ खड्डे में जब गाड़ी ब्रेक मार सकते हैं तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होगा। तो ये मेरा और पुलिस का हक नहीं बनता है, ये तो सिंध गवर्नमेंट का हक बनता है, जो और जगह जगह और खड्डे है तो उसका मरम्मत भी कर देगा। और दूसरी बात तो ये, कल मैं खुद गया वहाँ आला सिर्फ शराबगुड़ आला सिर्फ चौरंगी के
मैं चौरंगी के ऊपर भी खड़ा था, मीडिया वाला मेरे साथ था, तो चारों तरफ से भी गाड़ी भी आया था वहाँ, तो उसी जगह पे फुल होना चाहिए। जो वहाँ कार गाड़ी है, मोटरसाइकिल भी है, बड़ा गाड़ी भी है, लेकिन जो मशीनरी भी है, आपको भी पता है शराब उड़ाला सिर्फ चौरंगी तो पूरा कराची शहर का जो शहर में वहाँ से गाड़ी भी आता है, अजराबाद वगैरह वगैरह, तो ये मेन जगह है, तो उसके लिए फुल होना चाहिए बकाया। तो ये डंपर टन तोड़ के बारे में आपको भी पता है, तो एक्सीडेंट जो है, एक्सीडेंट तो किसी का दिल नहीं मानता है। जो ये अच्छा, बस हम ये जानना चाह रहे हैं आपकी कोऑर्डिनेशन है, यानी सिंध हुकूमत के साथ आपकी मुसलसल बातचीत होती रहती है कि आप भी कंसर्न है, ये भी कंसर्न है, क्योंकि अभी ये लग रहा है कि शायद कोई कम्युनिकेशन गैप है आपको जब जी जी नहीं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, जो सिंध गवर्नमेंट से पहले मुझे लाइसेंस नहीं मिलता था, तो कम से कम 2021 में शुरू था। अभी तो लाइसेंस के बारे में जो हमारा ड्राइवर है, ड्राइवर तो कम से कम तो जब गाड़ी सीखेगा तो वो 5-6 साल तो ड्राइवर के साथ हेल्पर ही कर रहा है, कंडक्टर भी कर रहा है, तो ऐसा डायरेक्ट तो कोई ड्राइवर नहीं होगा। अली भाई बस ये बता दें कि ये आपकी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन हमारा तो कितना जरूरी है इसमें बेहतर होना इनकी एसोसिएशन के साथ? अली भाई आप बता देखें, ज़रूरी है। अब हम तो चाहते हैं कि बगैर किसी चीज़ के, देखें बाद में अगर कोई सख्त इकदाम सिंध हुकूमत ने लिए, और हम नहीं चाहते कि किसी के लिए मुश्किल क्रिएट हो, कल को ये नहीं करेंगे, अगर इनके डंपर्स कॉन्फिस्केट हो गए, ड्राइवर्स अरेस्ट हो गए, सब चीज़ें सही तरीके से, हम तो नहीं चाहते किसी का रोज़गार डिस्टर्ब हो या कोई वो, मगर जो तरीका है, जो कानून है, उस की खिलाफ वर्जी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम तो चाहते हैं बैठें, कोई मैकेनिज्म बनाएं, कोई मीट अस हाफ वे कि बताएं भी ये चीज़ें इस तरह करनी है, अपने चैलेंजेस। अब खड्डा हो वहाँ, रोड पैच वर्क है या इतना खड्डा था इसलिए एक्सीडेंट हो। अब देखें ड्राइविंग पे भी है ना, अब मैं फुल स्पीड पे कहीं जा रहा हूँ, एकदम से खड्डा आएगा तो एकदम से मैं ब्रेक मारूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर वो सीनली चला रहा है एक नॉर्मल स्पीड पे, जो स्पीड लिमिट्स हैं उसके अंदर रहते हुए, तो फिर ये खड्डा हो या हल्की सी रोड खराब हो, ना कोई फर्क नहीं पड़ता उसको ना, पहली चीज। दूसरी चीज, एक जमाने में होता था कि मैंने ग्रोइंग अप में देखता था कि ये ट्रक्स के पीछे और ये ट्रांसपोर्ट के पीछे, डंपर्स के पीछे लिखा हुआ होता था हाउ एम आई ड्राइविंग, और एक नंबर दिया हुआ होता था। तो ये आपके फोरम से मैं इनसे अपील करूंगा कि ऐसी कोई चीज वापस लेके आए कि अगर हम अमूमन देखते हैं कि ये रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं ड्राइवर्स, और हम शायद गुस्से की नजर से देख भी लेते हैं उनको, मगर कहीं अपना कंप्लेन एक शहरी रजिस्टर नहीं करवा सकता, तो ऐसा कोई नंबर उनके पीछे ऐसा कोई नंबर होना चाहिए ताकि चेक एंड बैलेंस रहे। अली राशिद, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हाजी लियासूद, सदर डंपर एसोसिएशन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यही बात अभी है, इस गुफ्तगू से सर थोड़ा ये लग रहा है कि आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं है और ब्लेम गेम ज्यादा है। वो कह रहे खड्डे नहीं है, वो कह रहे आपकी एजुकेशन नहीं है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की बनती है, चाहे वो डंपर एसोसिएशन हो, सिंध हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, या हम आम आवाम हो, हम सबको। और स्पेशली जब बच्चों को आप बाइक पे बिठा के ले जा रहे होते हैं तो बच्चों के भी हेलमेट्स मिलते हैं, खुदा के वास्ते बच्चों को हेलमेट्स पहनाएं और इस तरह ना लेके जाएं। जनाब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद एक बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल वीडियो वायरल हुई कुछ दिनों, उसके ऊपर चाइल्ड अब्यूज हो रहा है उस बच्चे के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि हम हर वक्त रिपोर्ट करते रहते हैं कि बच्चों से रिलेटेड हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, चाइल्ड अब्यूज़ हो, या मोलेस्टेशन हो, चाइल्ड किडनैपिंग हो। तो आज का जो टॉपिक है वो इसीलिए हमने आपके सामने लेकर आए हैं क्योंकि एक सोशल मीडिया पे एक बहुत ही भयानक वीडियो सर्कुलेट हो रही है और उसमें एक हम देख सकते हैं कि कोई ट्रांसजेंडर गुरु है। और इस पूरी चीज़ का मकसद ये नहीं है कि हम ट्रांस कम्युनिटी को टारगेट करें, हम ऐसे किसी भी इंसान को जो बच्चों की प्रोटेक्शन का अब्यूज करते हैं उनको करें। तो वो देखा जा रहा है कि शख्स को नहीं, उन रवैयों को हमने कंडेम करना है। वो जो जिस तरह के रवैये हैं, और वो जो वीडियो आप देखेंगे भी, आपने भी उसको शेयर किया, सबने शेयर किया उसको, और इंतहाई काबिल मजम्मत अफसोसनाक ये वीडियो है। मुआशरे की भयानक जो हकीकतें हैं बेनकाब उससे होती नजर आ रही हैं।
اور آپ نے صحیح کہا کہ خواجہ سرا ہماری کمیونٹی کا حصہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو ایلیویٹ کیا جائے، لیکن یہ جو واقعات ہے تو ذرا اس پہ مزید بات کریں گے. سارہ احمد چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہیڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نادیہ جمیل بھی ہمیں جوائن کریں گی. اسی پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم سارہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us in the show. I know you're very busy. جی وعلیکم السلام سرور. نہیں, آئی ایم گلیڈ یو ہائیلائٹنگ دس ویری امپورٹنٹ کیس بیکاز وین میڈیا ہائیلائٹس اٹ دین یو نو اس کی امپورٹنس انکریزز. سو آئی ایم گلیڈ یو ٹیکن دس اپ. سارا تھوڑا سا بتائیے اس کیس کے بارے میں, اور پھر آپ کی ٹیم جس طرح پہنچی اور اس بچے کو ریسکیو کیا, تھوڑا سا بتائیے. جی سرور, بیسکلی یہ پرسوں رات کو ہمیں رپورٹ ہوا اینڈ تھینکس ٹو سول سوسائٹی ہو یو نو رپورٹڈ دس ایشو ٹو اس. اینڈ جیسے میری نالج میں آیا, آئی آسکڈ مائی گجرانوالا district in charge to intervene. So she contacted the police and then they went, and the police IG Punjab was very prompt and he rescued this boy ادھر سے جہاں پہ ہوتا ہے. انہوں نے ریڈ کیا, انہوں نے سیل کروائی ہے وہ جگہ جہاں پہ یہ ہو رہا تھا. I think they were being sexually exploited and tortured, these boys there. تو وہ انہوں نے کیا and پھر ہماری ٹیم نے, and then our first priority was of course getting the custody of the child. So then kal at 9 PM we finally got custody of this boy who was in the hands of this transgender community who were exploiting him. So اب ہم اس کو لاہور میں ریہیبلیٹیٹ کریں گے, ایجوکیٹ کریں گے انشاءاللہ. یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں میں دیکھتی ہوں جب بھی وزٹ کرتی ہوں, انبلیویبل آپ کام کرتی ہیں, اور بہت سارے بچے ہیں. تو یہ بچہ بھی اسی بیورو میں جا کے رہے گا. ہاں, اس بچے سے متعلق ان کے والدین, کیونکہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ 20,000 میں والدین نے دیا, تو ان کو بھی ٹریس کیا آپ نے کہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ جی, جب میری ٹیم کل گئی ہے سی پی او آفس میں گجرانوالا میں, تو وہاں پہ والدین بھی تھے موجود, بچہ بھی تھا, والدین بھی تھے. تو والدین بالکل ٹریس ہو گئے ہیں, لیکن اس کے آگے جو اس پہ جو اس کی بات کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو پھر اپڈیٹ کروں گی وین آئی گیٹ سم اپڈیٹ. لیکن ابھی کورٹ نے بچے کو لیگل کسٹڈی ہمیں دے دی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو. آئی پرسنلی بلیو سروت کہ دا چائلڈ شوڈ ناٹ بی ہینڈیڈ اوور ٹو دا پیرنٹ بیکاز انہوں نے ہی اس کو ڈالا تھا ان دس پروفیشن. بالکل, وہ گارڈینز ہی نہیں ہے. صحیح. اچھا سارا, یہ بھی بہت دو چیزیں پوائنٹس بہت ضروری ہیں. وقت کی ہماری قلت ہے, اس لیے جسٹ گونا رن اوور اٹ کوئکلی. ایک تو اس بچے کی طرح اور بھی بہت سارے بچے ہیں جو ان کے پاس ہوں گے. کیا ان سارے بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے؟ obviously this takes time, it's a process. تو کیا امپلیمنٹیشن ہے آف لا اور پالیسی میکنگ میں ہمیں کیا چینجز لانے ہیں تاکہ ایسے حادثات نہ ہوں؟ بالکل سروت, یہ وہاں پہ اور بھی بچے تھے, یہ میرے پاس انفارمیشن ہے, لیکن ابھی جو ریسکیو کیا گیا وہ اس بوائے کو کیا گیا. بٹ آئی ایم شیور میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ بھی کروں گی, آئی جی صاحب سے بھی, پولیس سے بھی, کہ اور بھی بچوں کو جو ہے بازیاب کروایا جائے اور ان کو بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا جائے تھرو کورٹ. دیٹ وڈ بی آئیڈیل. دوسرا آپ نے لا کا پوچھا, تو یو نو اٹس دا فرسٹ ٹائم دیٹ دا پنجاب اسمبلی ہیز فارمڈ اے کوکس آن چائلڈ رائٹس, اینڈ اس کا مقصد یہی ہے کہ لیجسلیشن پہ, امینڈمنٹس پہ کام کیا جائے. تو وی آر لوکنگ انٹو دس کہ ہمیں کس جگہ, پلس اس کیس میں تو اسپیسیفکلی آئی تھنک اٹس اباؤٹ implementation because we all know this is a crime, sexual exploitation. and ہم نے trafficking in persons کا بھی پہلی دفعہ, I mean بہت کم کیسز میں ہوتا ہے کہ وہ سیکشن ایڈ کریں, ہم نے وہ ایڈ کروایا ہے because this falls under trafficking in persons. اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے. تو hopefully یہ بھی آپ نے ظاہر ہے اب آپ کی ٹیمز کام کر رہی ہوں گی کہ یہ تو گجرانوالا میں ہوا ہے, لیکن جو دیگر پنجاب کے شہر ہیں, بڑے شہر ہیں, وہاں تو زیادہ یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو آپ جی ہمیں کیمپین بھی سٹارٹ کریں کہ لوگ ہمیں نا رپورٹ کریں wherever they see abnormal activity, اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے, ہماری ہیلپ لائن 1121 پہ انفارم کریں. اینڈ لاسٹلی آئی ایم ویری گریٹفل ٹو سروت, فری الطاف, نادیہ جمیل, ایوری بڈی, کوثر فرام ایس ایس ڈی, ایوری بڈی ہو واز ان دیٹ گروپ جس کی وجہ سے مجھے یہ پتا چلا. سو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا سول سوسائٹی فار دیئر کنٹریبیوشن. اور اس میں ایک اور چیز آپ کی طرف سے بات آئے گی تو زیادہ اسٹرانگ ایک میسج جائے گا کہ خواجہ سرا کمیونٹی تو ویسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے, مین اسٹریم میں ان کو لانا چاہیے, لیکن جرائم پیشہ عناصر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اگر کوئی کور اس میں کور لے کر کوئی ایسی ایکٹیویٹی, ہاں یہ ذرا اس پہ وضاحت. جی بالکل, نہیں بالکل, آف کورس دیکھیں ہم ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے حقوق کے ساتھ ہیں, لیکن اگر کوئی وہ اس کو مس یوز کریں گے اپنی اتھارٹی کو, یا ان کو جو ہم امپورٹنس دے رہے ہیں یا رائٹس دے رہے ہیں, دیٹس ایبسلیوٹلی انٹالریبل. اینڈ دا چیف منسٹر پنجاب آلسو ہیز اے ویری زیرو ٹالرنس پالیسی ٹورڈز یو نو یہ وائلنس اگینسٹ چلڈرن. تو اس پہ تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اینڈ وی آل ہیو ٹو we have to see this. سارا یہ بھی بتائیے, کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جب جرائم ہوتے ہیں تو وہ انسان جو برا کام کر رہا ہے اس کو 4-5 دن کے لیے تو پولیس کی حراست میں لے لیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ انفلوئنس سے یا پیسے دے کے وہ چھٹ جاتا ہے. تو فالو اپ کتنا ضروری ہے معاشرے میں؟
ऑफ कोर्स फॉलो अप जरूरी है, क्योंकि अब ये जो प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन जुडिशरी है ना, उसको स्पीड अप होना, उसको ज्यादा इफेक्टिव होना जरूरी है। सरबत इसीलिए कॉकस फॉर्म किया कि हम देख रहे हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि उन पे जो है ना उनको रिवाइज किया जाए पॉलिसीज को। सारा, लास्ट क्वेश्चन, जी जी कितना जरूरी है, आप पंजाब में अनबिलीवेबल काम कर रही हैं, बट इस पॉलिसी पे, चाइल्ड प्रोटेक्शन की पॉलिसी पे हर सूबे को एक होना चाहिए और वो स्ट्रक्चर एक तरीके से बन के हर शहर पे इम्प्लीमेंट होना नहीं, चाहिए। और इसमें ये भी ऐड कर लें, तालीम और सेहत के मौके मुहैया करना उस तबके को जहां पर बड़े डिप्राइव्ड लोग हैं, ये भी बहुत इसका एक पहलू है। बिल्कुल, देखिए, और एक और बात मैं बताऊंगी, हम कॉकस के थ्रू ना प्रिवेंशन कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं यूनिसेफ से पूरे पंजाब में, जिसका मकसद होगा कि जो ये जराइम हो रहे हैं ना, ये हो ही नहीं, लाइक यू नो वी एक्ट आफ्टर द इंसिडेंट हैपेंस। बिल्कुल, वी आर लॉन्चिंग अ कैंपेन जिसमें हम पहले भी इन्वॉल्व यू नो मदरसा के उलेमा एंड पुलिस एंड एवरीबॉडी एंड सेंसिटाइज देम। तो आप देखेंगे इसमें इंप्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह, एंड वी टेक यू एज वेल ऑन बोर्ड इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सारा अहमद फॉर योर फैंटास्टिक वर्क। आपकी टीम को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इस बच्चे को रिकवर कर दिया है। शो से बस इतना ही, आपसे मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी राइज एंड शाइन पर। ज़ुहैब और सरवत को इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल वीकेंड, खुदा हाफिज।